आपकी इच्छा हो रही है कि बार बार आप अपने एक्स को कॉल करो, अभी ब्रेकअप हो गया है, नॉर्मल है। जब आप इतना लंबा टाइम किसी के साथ स्पेंड कर लेते हो तो आपको तो उनकी आदत पड़ जाती है। वो शायद ना भी डिप्रेस्ड हो बट वो ये थॉट को लेके इतना आगे चले जाए कि वो डिप्रेस हो जाए। पीपल आर नॉट टेलिंग यू कि बैकग्राउंड में उनको क्या स्ट्रगल हो रही है। वो उस 30 सेकंड के क्लिप में, उस एक पोस्ट में आपको इस इंसान की लाइफ के बारे में क्या पता चल रहा है। वी कैन से पीपल्स इंटरेक्शन और गेटिंग टू नो ईच अदर is just literally based on just swiping left or swiping right. Essence of love. Yeah. In just one word, it's all about giving. All about giving. That's all. Not that love expecting is. anything. मैं ऐसे बहुत बैठती हूँ. That does not mean that I am defensive. Also, a very controversial sort of thing. Should you remain friends with your ex? Greetings everyone, welcome back to AP Podcast episode number 20. So for this episode, we have with us Damini Grover, who is a renowned psychologist / therapist from Delhi NCR. So in this podcast, starting from the very own details of psychology, what is therapy, to talking about heartbreaks, emotional breakdowns, mental breakdowns. This podcast is a must for every individual to watch. So, AP Podcast 20 starting in 3, 2, 1. First of all, welcome to the podcast, Damini. I want to put forward the gratitude of the whole team AP podcast in front of you for being here, for being with us, and we are really grateful that you are here. Thank you for having me. Yeah. So आप जिस फील्ड में हो ना दामिनी, अभी साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, ये एक ऐसा फील्ड है ना इस टाइम कि देयर कैन बी अ प्लथोरा ऑफ टॉपिक्स दैट वी कैन डिस्कस. काफ़ी कुछ डिस्कस कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जिनकी डेप्थ में जाना है. And honestly, I would like to know also your perspective towards being a psychologist and being in those situations. मतलब हम as a common person कोई trauma सुनते हैं, कुछ ऐसा सुनते हैं जिससे breakdown हो सकता है. We are tend to get carried away by that, and we even get emotional, or we even get affected by that. So I would also know that perspective, that how it takes a toll on you. So for the starters, let's start with this. What do you feel is real psychology, and what is also not psychology? So like if you can elaborate, let's for the starters break the basic term of the psychology. Well, everything is psychology at the end of the day, because सब कुछ तो हमारे thoughts, हमारे emotions, हमारे actions से चलता है. Even everything in the world that you look at, whether it's advertising, it's marketing, you're talking about running a business, managing a household, everything runs on psychology. That's one. But yes, when we talk especially in terms of mental health, then हम और उसे refine कर रहे हैं, हम थोड़ा एक और deeper sense में जा रहे हैं, where we are picking up the intricacies of working with that particular thought process, with a particular set of behaviors. फिर हम उसे एक general sense में नहीं ले रहे हैं. So when we talk about the field, actually it's a predictive field, like predictive science कह सकते. It's not a complete science, but it's behavioral science. It's a little bit about trying to figure out how somebody is likely to behave in a particular situation, what is it that can influence their behaviors, and what is the best way, or what are the ways in which we can behave it, sort of, I would say become the best version of ourselves in a way. जैसे जैसे हम अपने आप को समझना शुरू करते हैं, so psychology as a field gives you that wider perspective on human thought and human behavior. What is not psychology? It's difficult to say what is not psychology, because वो तो हम सिर्फ एक फील्ड की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम इस तरीके की modifications और therapies, interventions की बात करते हैं. But everything is psychology at the end of the day. बिना human behavior को समझे हम किसी चीज़ के साथ काम ही नहीं कर सकते. And what are the most complex things that you have noticed till now about human behavior? सभी कुछ is complex. The fact is that even when you think that you know a person and you are about to say that मुझे पता है कि ये कैसे respond करने वाला है या करने वाली है, the person can actually go ahead and say something and do something जो आपने कभी सोचा भी नहीं था.
सो दैट इज़ वाई यू नो इट्स आप सिर्फ कोशिश ही कर सकते हो समझने की, थोड़ा बहुत यू नो प्रिडिक्ट करने की, बट आप कम्प्लीटली नहीं कर सकते इसमें कुछ भी. सो दैट वे फॉर मी लाइक बिकॉज आई हैव बीन इन द फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मुझे कुछ भी ऐसा सरप्राइज नहीं करता है दैट ओ अच्छा इसने ऐसे कर दिया, ओ इसने वैसे कर दिया, बिकॉज आई एम एबल टू अंडरस्टैंड यू नो इन दैट मोमेंट कि ओके कुछ हुआ होगा जिस वजह से इस तरीके का एक बिहेवियर आया. सो आई वुडंट से कि बहुत ज़्यादा कुछ सरप्राइजिंग अब तो नहीं लगता है. एंड इवन एज अ साइकोलॉजिस्ट डू यू हैव दिस इनहेरिट व्हाट वी कैन से यू नो एक मैकेनिज्म सॉर्ट ऑफ कि व्हेन यू सी अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम योर ब्रेन इज सॉर्ट ऑफ trained or it has observed so many things that you are you know tend to make conclusions out of it कि ये इंसान यार ऐसा होगा या ये चीज़ें ऐसी होगी. Is it happening with you? Actually ये एक misconception है about psychologists and the field in general that you know हम देख के कुछ आइडिया लगा सकते हैं या हमें थोड़ी सी देर में बहुत कुछ पता लग जाएगा about the person. So in a way that you know we're constantly coming up with some assumptions or some conclusions. That is not actually true. Of course आप फोकस करने बैठोगे, आप ध्यान से देखोगे तो आपको हर किसी के बारे में चीज़ें पता लगनी लग जाएंगी, आप उस फोकस से जाओगे तो. बट हम हमेशा ऐसा नहीं कर रहे होते हैं. अब जितना जितना आप टाइम स्पेंड करते जाते हो किसी के साथ और फोकस्ड वे में आप इंटरेक्ट करोगे, यू आर एबल टू पिक आउट बट नॉट लाइक वी आर रोमिंग अराउंड विद दैट फोकस. डिफरेंस बस ये हो जाता है. बट एक बार जब आप बात करना शुरू करो, इंटरैक्ट करना शुरू करो, उनके हाव भाव नोटिस करो. सो ऑफ कोर्स बिकॉज ट्रेनिंग भी वैसे हो रखी है और एक्सपीरियंस भी है, येस यू डू एंड अप पिकिंग अप स्टफ बट नॉट इन अ वेरी कंक्लूसिव वे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू कैन ऑल्सो बी रॉन्ग अबाउट वॉट यू आर अज्यूमिंग. सी एक बिहेवियर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी एक जने के एक सर्टन वे में अपने आप को प्रेजेंट करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल, बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, सो इट्स सेड दैट अगर कोई ऐसे बैठा है राइट, सो दैट मीन्स दे हैव अ वेरी क्लोज पॉस्चर. वो आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, दे कैन बी वेरी डिफेंसिव एंड यू नो ओपन नहीं है. मैं ऐसे बहुत बैठती हूँ, दैट डज नॉट मीन दैट आई एम डिफेंसिव. इट्स अ वेरी कंफर्टेबल पॉस्चर फॉर मी. मुझे कभी ठंड भी लग रही होती है तो भी मैं ऐसे करके बैठ जाती हूँ. ना फॉर मी दैट्स नॉट मी बीइंग डिफेंसिव और टेलिंग द अदर पर्सन दैट आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू व्हाट यू हैव टू से, आई एम क्लोज. नो, इट्स जस्ट माई वे ऑफ कंफर्टिंग माई सेल्फ. ऐसे भी आई एम वेरी ओपन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, राइट. बट द जनरल आइडिया इज दैट ओ दैट यू नो आई एम डिफेंसिव इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस. यू फील कि ऐसे फिक्स नोशंस है, जैसे ऐसे हैंड फोल्ड करना, या फिर यू नो समटाइम्स पीपल डोंट डू फर्म हैंडशेक, सो यू नो सम पीपल वो ना ऐसे बैठते हैं टांगे क्रॉस करके एंड ऑल दैट स्टफ. सो यू फील दीज आर लाइक बायसेस, दीज आर नॉट कुछ हद तक तो हो ही जाता है. नहीं, कुछ हद तक सी अगेन बिकॉज साइकोलॉजी इज नॉट अ परफेक्ट साइंस, राइट. वेयर इट्स ऑल बेस्ड ऑन assumptions and whatever you have seen generally होते हुए you are likely to pick that up and you're likely to come up with a theory that you know ऐसा ही होता होगा. बट उसमें भी आपको वेरिएशंस दिखेंगे is what I'm saying. कि just because if somebody is you know you're sitting like this, for example book में लिखा है या आपको ट्रेनिंग क्लास में बताया कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए, just because somebody is sitting like this there can be another reason for it. What if my shoulder is hurting you know and I just want to support my hand like that, then what? फिर आप क्या बोलोगे? अगर मैं ऐसे भी बैठी हूँ फॉर एग्जांपल, अभी ये बहुत कूल और एक कैजुअल वे में है. एक बार मुझे याद है किसी फॉर्मल मीटिंग में आई एंडेड अप सिटिंग लाइक दिस, चेयर थी एंड आई सैट लाइक दिस ओनली बिकॉज एक्चुअली मेरे शोल्डर में बहुत दर्द हो रहा था, मुझसे ऐसे बैठा नहीं जा रहा था. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक सपोर्ट. बट इन माई माइंड मेरे को लग रहा था दैट यू नो दिस इज गोइंग टू कम ऑफ एज वेरी रॉन्ग और दे माइट थिंक दैट शी इज़ बीइंग वेरी कैजुअल. ऑफकोर्स आई क्लैरिफाइड इट दैट आई वॉन्ट टू टेक सपोर्ट, बट मैंने नहीं क्लैरिफाई किया होता सो इसका भी कोई अजम्पशन बन सकता था. So that's what I'm saying, that you know assuming that इसका मतलब ऐसा ही है, that's not something that we should be doing and we definitely don't do that in our field. We always at least I always leave room open for some new information that might come up. So you're not sort of that orthodox psychologist that we hear about? बिल्कुल भी नहीं. मेरी शक्ल देख के लगता है क्या? There is absolutely nothing conventional or orthodox about me. So and I think that generally अभी भी जैसे हम फील्ड का एवोल्यूशन देख रहे हैं, it is like that. Because वो पुराने notions हैं that this is how a therapist is supposed to look and this is how they're supposed to carry themselves and हमेशा serious होना चाहिए, but ऐसा नहीं है.
It's about who you are, your personality, because that's what people are connecting to. आपका कोई ऐसा एनकाउंटर हुआ हो लाइक बिफोर एंटरिंग टू द साइकोलॉजी फील्ड दैट यू नो स्पेसिफिकली वांटेड टू बी इन दिस फील्ड, लाइक ऐसा कोई स्पेसिफिक एनकाउंटर? हाँ, मतलब माय ओन क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस विद माय थेरेपिस्ट. अच्छा. बिकॉज सी मतलब मेरे करियर में साइकोलॉजी से पहले देयर वर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू. एंड सो इट वॉज लाइक अ टसल बिटवीन टू फील्ड्स कि ये साइकोलॉजी चूज़ करूँ या दूसरा चूज़ करूँ. एंड द वे माई लाइफ शेप्ड आउट, जब मुझे अपनी थेरेपी के लिए जब मैंने अप्रोच किया अपने थेरेपिस्ट को, सो दिस इज स्टिल वेरी क्लियर इन माई माइंड दैट आई this was probably my third or my fourth session and we were talking about क्या करना है career wise, क्या मेरे options हैं. And I just looked at her and I said मेरे को यही करना है जो आप कर रहे हो. And she said, what does that mean कि मुझे ये करना है जो आप कर रहे हो, because you know I'm a psychologist, right? So थोड़ा सा explain करो. And then जब मैंने explain किया कि what exactly do I mean, this is the kind of lifestyle I want and this is the kind of work that I want to do, the kind of impact that you're making, this is something that even I would like to do. So वहाँ से फिर I became a little more focused and I leaned more towards this. Psychology. हाँ, because my own experience with therapy, then I had a wonderful therapist जब मैंने first time जब लिया था therapy, when I'd gone for it. So उनके साथ जब मेरा experience हुआ तो मुझे realize हुआ how powerful this field is and the kind of therapist I met. I was like, I also want to be like her. And जब therapy आपने term use किया ना, अब therapy आज की date में ना बहुत अच्छा term भी और controversial भी है. कुछ लोगों के हिसाब से therapy is just another way of to some people maybe procrastinating on what you are doing and just not doing the actual stuff. To some people it is actually a great solution and wonderful things can happen out of it. अब therapy को लेके बहुत कुछ ऐसे ना conflicts है. I know कि this is your field, but honestly I would really like to know without any biasness and all honest feelings कि what is actual में therapy and what is the difference between therapy and counseling. Okay. So, see, counseling and therapy are related, yet slightly different, in the sense that when we are talking about, so if we look at it like an iceberg model अगर हम लें, तो the tip of the iceberg, let's say that is counseling. And the remaining part of it would be therapy. So by that what I mean is counseling is just a a tool, or it's just a method by which you are giving advice or some suggestions or some sort of guidance to the person. That's about it. But therapy is actually going really under the surface to figure out what is happening with the person, उनकी life में क्या चल रहा है, क्या क्या उनको struggles हो रही हैं, how is the environment contributing to their struggles, how are they contributing to their own struggles, their own environment. So it actually then goes, it delves completely into the life and into the mind of the person. बट काउंसलिंग जस्ट क्योंकि जैसे करियर काउंसलिंग भी होती है, एकेडमिक काउंसलिंग भी होती है, राइट? सो जस्ट बाय द टर्म इट मीन्स कि आप किसी तरीके से गाइडेंस या हेल्प या उस तरीके से आप सपोर्ट दे रहे हो. बट थेरेपी इज लाइक द एक्चुअल डीपर लेवल वर्क दैट यू पुट इन योरसेल्फ. And what are the signals that you should take therapy, as in कब आपको पता चलेगा इस बारे में? पहला तो ये कोई कभी भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी नीड क्या है एंड वो कितने विलिंग हैं. और इसमें नीड आइडेंटिफाई करने के couple of factors which one can keep in mind. First is that if there is any situation that you're struggling with जो आपको लगता है कि मेरे थ्रेशोल्ड से बाहर हो रही है, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली लेकिन मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, यू कैन बी स्टक इन दैट वे. एंड सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इफ़ यू फील दैट while you're struggling your functionality is going down. So there's a baseline functioning that we all maintain. By baseline functioning I mean that we are sleeping fine, we are eating fine, we are physically we are mobile, we can take care of our day-to-day things, and our mood is also okay. थोड़ा बहुत up down होता है, but basically we can come back to our normal selves and we overall feel that I can take care of life. Whatever life throws at me, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मैं handle. जब आपको लगे कि आपकी ये baseline shift हो रही है,
अब मूड बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेरिड चेंजेस हो रहे हैं, बहुत इंटेंसली हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, या फिर आपकी बेसलाइन ही शिफ्ट होगी, अब खाने में प्रॉब्लम आ रही है, कम खा रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, भूखी नहीं लग रही है, नींद पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है, और आपको डेली फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम आ रही है कि आई एम नॉट एबल टू फोकस, आई एम रियली नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड आई हैव लॉस्ट मोटिवेशन, तो मैं अपने काम ही नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. सो दोज आर द साइंस विच टेल यू दैट मे बी it's time for you to get some kind of help, seek some kind of support, because आपसे खुद कुछ नहीं manage हो पा रहा है. And it is completely okay if that happens, simply because see, we are all human beings, और कभी ना कभी ये stage तो किसी के साथ में आती ही है, हर किसी के साथ में, where you feel that you're in a situation जो आप नहीं manage कर पा रहे हो, क्योंकि या तो आपको पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, या फिर समझ आने के बाद आपके पास adequate skill set या resources नहीं है, तो कुछ तो फिर आप करोगे ना सीखने के लिए. इट्स लाइक सेइंग स्कूल में अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है तो आप जाकर हेल्प लोगे, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, आप ट्यूशन्स लोगे, बट कुछ तो एक्स्ट्रा आप करोगे ना समझने के लिए या अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. सो दिस इज एग्जैक्टली दैट. बट वैसे जैसे स्कूल का एग्जांपल है, अब सपोज ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ आ रहा है, अब क्या पता वो थोड़ा हार्ड वर्क करे, मतलब खुद एफर्ट पुट करे और उसका हो जाए. सिमिलरली if someone is experiencing these things that you said and they just take some time off and eventually क्या पता उन्हें थेरेपी की ज़रूरत ही ना हो, and maybe like if they actually take therapy वो शायद ना भी डिप्रेस्ड हो, बट वो ये थॉट को लेके इतना आगे चले जाए कि वो डिप्रेस हो जाए. सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? Well, see, the first part की maybe if they take some time off and फिर उनको शायद थेरेपी की ज़रूरत ही ना पड़े. So again, that's their way of coping. See, before the fact is that before somebody reaches therapy, they have tried a lot of things. Everybody will have some things in their own backpack कि चलो इस सिचुएशन में मैं ये ट्राई करके देख लेता हूँ, मैं इसको ऐसे करके देख लेता हूँ, टाइम ऑफ ले लिया, और whatever it may be. जब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया उसके बाद भी चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही हैं या आप अपने में बेटर नहीं फील कर पा रहे हो, तब तो आप कुछ करोगे ना. सो देन थेरेपी इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू. डज नॉट मीन दैट एवरी टाइम द पर्सन हैज़ टू गो फॉर थेरेपी. समटाइम्स आप अपने दोस्तों से बात कर लेते हो, आपको कोई वे आउट मिल जाता है. कभी आप अपने किसी सीनियर से, पेरेंट्स से, किसी से बात करते हो एंड दे माइट ऑफर समथिंग टू यू. सो ऑल दोज थिंग्स आर फाइन, दे कम अंडर योर कोपिंग ओनली. But when you feel you've exhausted literally everything, right, then that's the time you need to consider something like this. But most importantly, it's not about handling a situation per se. It's majorly about आपके internal world में क्या हो रहा है. क्योंकि आपके अगर थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपकी फंक्शनैलिटी अगर नीचे जा रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होने की बजाय और ही ख़राब हो रही है, राइट, तब उसमें फिर खाली फ्रेंड्स और फैमिली के सपोर्ट पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं समझ में आएंगी. Say if you have started to become anxious, if you are showing signs of say for example depression, if your sleep has really gone for a toss, तो वो भी क्या कर लेंगे? There has to be then a proper line of intervention that needs to come in. आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास तो जाते ही हो ना. कितना सेल्फ मेडिकेट कर लोगे? अब इतना तो बेसिक्स तो सभी को पता होता है कि बुखार हो गए तो क्या करना है, पेट दर्द हो रहा है तो क्या करना है, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि इसके बावजूद भी डिस्कम्फर्ट नहीं जा रहा है, तब तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड लोगे ही ना प्रोफेशनल को कंसल्ट करने के लिए. सो मेंटल हेल्थ के लिए भी इट्स द सेम थिंग. एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट एक्चुअली हैपन इन थेरेपी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल एंड अप गेटिंग टू प्लेसेस विच आर वेरी एक्सपेंसिव, बट इवेंचुअली दे आर जस्ट इन अ ट्रैप. और उनको बहुत बाद में रियलाइज़ होता है इन्वेस्ट करने के बाद कि भाई पैसा जा चुका है. बट इवेंचुअली व्हाट डू यू फील इज़ कि मतलब वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है जो थेरेपी में फॉलो होता है? Well, I would like to know from you, what do you mean by a trap? Trap as in, like if I may say this, let's not name that person. I have a very close friend, ठीक है. So ये Procto ऐप है. So this Procto ऐप पे ही they saw like there is this very famous counselor cum therapist and they were having a very good rating. So my friend went there and eventually it was their first session. Okay, so
व्हेन दे वेंट देयर और उन्होंने वो सब कुछ देखा कि कैसे सारी चीज़ें हो रही है, तो फर्स्ट थिंग वाज कि एक उनको काउंसलर मिला वहाँ पे जिन्होंने एनालाइज किया कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग, क्या क्या चीज़ें आ रही है. उसके बाद उनको 5 मिनट वेट करना पड़ा एंड देन द हेड थेरेपिस्ट विच इज़ देयर उनके पास बुलाया एंड देन straight away the therapist said ki you know you are facing this problem. Suppose they used a term, you are facing identity crisis, ठीक है. And this friend of mine said कि I don't want to take any medicine. मैंने मना कर दिया, मतलब फ्रेंड ने मना कर दिया कि they don't want to take any medicine, but still the therapist suggested कि you should take the medicine because it is betterment for you. And eventually the therapist instead of saying ki what things you should do, what are the things that you can do, instead they suggested ki you get attached with us, you be there and we'll do these seminars for like almost 10 sessions, that is one session a week, something like that. It was a deal like that. So the person said ki main nahi karna chahta hu and all that stuff, but still the therapist was very reluctant to do this. So what do you feel about this overall scenario? I hope you get the story. Very long story. Well, yes, no, I get the gist of it. But to answer your question, at the base level की therapy में होता क्या है? One, I'd like to clarify that every therapist, whether they practice individually or they have a team, everybody will have their own way of working. इसमें कुछ चीज़ों के लिए कुछ सेट फॉर्मेट नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए होता है ना. आई जस्ट कम टू दैट. सो वन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉमेंट ऑन व्हाट समबडी शुड डू और समबडी शुडंट डू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट हाउ दे वांट टू ऑल्सो पुट देयर वर्क फॉरवर्ड. बट कपल ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन थेरेपी. One is that actually no, the major thing that happens in therapy is identification of the issue. कि कोई भी अगर किसी भी तरीके की का कंसर्न लेके आ रहा है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, यानी कि खुद में उनको कुछ प्रॉब्लम्स फील हो रही हों, या फिर हो सकता है एनवायरनमेंट में पेरेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, रिलेशनशिप के साथ में हो रहा है, एंड उनको नहीं समझ में आ रहा है कि डील कैसे करना है. एंड ऑब्वियसली इंटरनल कॉम्पोनेंट सभी में रहेगा, बिकॉज प्रॉब्लम चाहे आपके मम्मी पापा कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप कर रहा हो, एट द एंड ऑफ द डे you are the one who's also in that situation. So when a person reaches therapy, they obviously have exhausted their coping resources. So the idea is to first help them to figure out कि क्या क्या possible areas हैं जहाँ से उनको उनका discomfort originate हो रहा है. That's that. कभी कभी हाँ, of course एक diagnosis भी देने की ज़रूरत होती है अगर हमें दिख रहा है कि एक particular disorder के symptoms manifest हो रहे हैं. एंड जिस तरीके से डॉक्टर वुड डायग्नोज, राइट, सिम्टम्स देख के कि दिस थिंग प्रॉबेबली फॉल्स इनटू से फॉर एग्जांपल अ टाइफॉइड इन्फेक्शन, राइट, एंड देन अकॉर्डिंगली वो दवाई दे देंगे. तो उसी तरीके से वी हैव कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर्स एज वेल वेयर पीपल कैन फॉल इनटू, एंड इट्स अ होल स्पेक्ट्रम, माइल्ड से लेके सिवियर तक आप फॉल कर सकते हो. सो अ पार्ट ऑफ थेरेपी इज ऑफकोर्स टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं, एंड अगर कुछ ऐसा है सो मेडिकेशन की नीड है या नहीं, वो भी फिगर आउट होता है. एंड देन you've got psychiatrists in the field who give you the medications. Therapists don't give medications, psychiatrists do, because they are trained doctors in a way. So basically problem identification, and then uske baad mein we are working at resolving all the concerns in whatever way possible. And resolutions ke liye we've got different therapeutic modalities that every therapist will follow. So somebody would like to use couple of modalities, somebody would maybe practice just one particular therapeutic technique. So iske through we basically help individuals to resolve their concerns, improve their quality of life, improve their functionality, and basically come back to their whatever they consider their original self. And what do you feel is the minimum age that one person should go to the therapist or psychiatrist? ऐसा कुछ नहीं है, because even kids need help. ऐसे तो 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चों में भी इश्यूज होते हैं. सो यू गॉट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एज वेल, यू हैव साइकियाट्रिस्ट हु विल ट्रीट किड्स अगर मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है. सो वैसा भी होता है. सो देर इज़ नो एज लिमिट. इवन अ 60-70 year old person कैन गो फॉर काउंसलिंग और थेरेपी अगर नीड होती है तो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज़ हैपनिंग टू ऑल ऑफ अस. सो कभी ना कभी किसी को तो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ ही जाएगी, और हमें सब कुछ नहीं पता होता
Even we as therapists need support and need help. So even we don't know everything about everything. So there's no particular age limit to it. Also, since you said कि you yourself sometimes need help, is it ever happened with you कि you yourself were sitting calmly, अब info तो है दिमाग में कि क्या होता है, you know about cases, तो कभी ऐसा आपको suddenly realize हुआ हो कि यार actually I'm facing this particular problem, I'm facing this particular issue in my own life, ऐसा कभी हुआ हो आपके साथ? ऐसा तो बहुत होता है. तो isn't that thought disturb you? Absolutely not. See, because it depends how you actually look at it. ये तो वही, क्योंकि ये वही बात हो गई कि डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ सकता. तो साइकोलॉजिस्ट को तो कभी कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती. बट एंजाइटी से मर जाएगा. डॉक्टर को ये पता चले उसके कैंसर के सिम्टम्स आ रहे हैं तो इवेंचुअली द डॉक्टर वोंट बी एबल टू मतलब सर्वाइव इतने अच्छे से. नहीं, it's not that they won't be able to survive. Obviously, if a doctor has been diagnosed with any particular disease, cancer या कोई भी हो, whether or not they die, that depends on the disease that they have. That will depend on the kind of treatment they are going for or not going for. तो ये सारे factors आ जाते हैं. But हाँ, एक डॉक्टर को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब इस फील्ड में देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट. या तो हम ये बोलेंगे क्योंकि हम फील्ड से हैं तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए और हमारे साथ तो कभी कोई चीज़ ख़राब होनी नहीं चाहिए, कि डॉक्टर तो कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता, तो साइकोलॉजिस्ट को कभी साइकोलॉजिकल कंसर्न्स हो ही नहीं सकते, जो कि एक बहुत अनरियलिस्टिक बात है. बिकॉज ये सब चीज़ें होने से पहले ये सब तो हम काम कर रहे हैं ना, ये हमारा प्रोफेशन है तो हम भी इंसान ही, हमारा सिस्टम भी तो सेम ही है, हम किसी दूसरे प्लैनेट से तो आए नहीं. एंड लाइफ इज हैपनिंग टू ऑल ऑफ अस. सो इवन वी हैव फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, करियर प्रॉब्लम्स, सब कुछ तो हमको भी तो. डू यू गेट अ एज ऑन दोज इश्यूज? इफ अ लिटिल बिट बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि या तो हम ये पर्सपेक्टिव ले लें कि हमें कुछ हो नहीं सकता, ऐसे में जब कुछ हो जाएगा तो आप खुद कोप नहीं कर पाओगे, देन यू विल बी इन शॉक दैट मेरे साथ कैसे हो गया, आई शुड हैव नोन बेटर, मुझे बेटर तरीके से हैंडल करना चाहिए था. या तो ये, या फिर आप ये समझ जाओ दैट यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू आर फॉलेबल, ये सब आपका सिर्फ एक काम है. तो जैसे आप दूसरे लोगों को सिखा रहे हो कोप करना, आपको भी फिर सीखना पड़ेगा. तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो गया है जो आप अभी नहीं हैंडल कर पा रहे हो, by virtue of being a therapist or a psychologist, the edge that you get is that you're high on self-awareness. You probably are able to foresee issues. You are able to be a little better prepared and आप इंटरवेंशन पे थोड़ा जल्दी जाओगे. इट्स लाइक सेइंग अगर मुझे कभी एंग्जाइटी फील हो रही है तो मुझे 2 घंटा नहीं लगाना पड़ेगा टू फिगर आउट दैट मुझे एंग्जाइटी हो रही है. I'll get to know that in probably 15-20 minutes that okay, something is not right with my system, maybe I'm being anxious, and okay, let me do what I need to do to help myself. But when you're not from the background and you don't have any idea about it, you will probably take a few days or a few weeks to figure out that मेरे साथ इतने टाइम से ये चल रहा है and I don't know what to do. उतना ही है कि आप शायद कोई चीज़ें थोड़ा पहले समझ जाओगे, थोड़ा इंटरवेंशन आपका पहले हो जाएगा, बट टू से कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वो तो एक बहुत अनरियलिस्टिक माइंडसेट है. सब प्रॉब्लम साइकोलॉजिस्ट को होती हैं. But eventually the edge is still there, like you can literally, especially in this time, you can fix your own problems, so it can be a bigger boon than that. No, see, we can't fix our own problems simply because just like anybody who's not from the field, they need help, we will also need help. So हमें भी या तो अपने हम थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, कोच के पास जाएंगे. Psychologist need a therapist himself. Absolutely. In fact, it's mandatory. It should be mandatory. And बाहर की countries में तो खैर है ही. उनका पूरा एक प्रोटोकॉल चलता है supervision का that you have to complete a certain number of hours in therapy before you start practicing. And here also, since therapy has come up in a big way, a lot of practicing psychologists, therapists, they are undergoing supervision themselves. And अगर ये ट्रेंड नहीं भी था तो भी बहुत लोग अपनी थेरेपी पैरेलली चलाते हैं साथ में, for 2 reasons. One, that's completely my personal opinion, that आप ह्यूमन लाइफ के बारे में किताबों से बहुत ज़्यादा नहीं सीख सकते. Of course, you need theory, you need concepts, but you need real life also. You need to put them in practice. You need to go out there and see what is happening. So field में जो आप सीखते हो वो आपकी एक learning को और ज़्यादा solidify करता है.
दैट्स वन. एंड फील्ड में ही फिर जब आप थेरेपी अंडरगो करते हो तो आपको थेरेपी की बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं जो समझ में आती हैं. सी, इफ आई लर्न टू वर्क विद माई सेल्फ, इफ फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एंग्शियस, इफ आई नो हाउ टू हैंडल माई एंग्जाइटी, I'll be in a better position to tell the other person how to handle their anxiety. I'll know probably which technique or which tool works slightly better as compared to the other one. So उस तरीके का differentiation आप समझ पाते हो. There are times when you're genuinely able to you truly understand what the other person is going through. वो आपका एक जो हम थेरेपी में बोलते हैं that a therapist needs to be empathetic, यानी उनको समझ आना चाहिए कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हो. सो जब आप ऑलरेडी एक तकलीफ से गुजरे हुए हो, राइट, सो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्या देगा आपको. हैविंग सेड दैट, दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बी इन थेरेपी और यू हैव टू काइंड ऑफ गो थ्रू हार्डशिप्स. ऐसा कुछ हैव टू वाला नहीं है, बट अगर ऐसा होता है तो येस, इट डज हेल्प यू. सो थेरेपिस्ट को थेरेपी लेनी चाहिए अपनी भी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए. Because all the work that we do ultimately it does take a toll on us also. We also have to make sure that हमारी लाइफ बीच में नहीं घुस रही है. So उसके लिए हमें भी अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है. यहाँ से थोड़ा मैं टॉपिक को चेंज करता हूँ, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे आते हैं. Well, honestly, even social media is something which is helping me do all this. But at the end, it does have taken a toll on me. Like endlessly scrolling, so that you can get ideas of what the content is, what you should provide, and even many other things. Even as a common person, social media ने इतना ज़्यादा inferiority complex create कर दिया है कि आप ना चाहते हुए भी you have to face certain issues. कुछ भी हो सकता है. Maybe you are seeing someone's vacations photo, maybe you are seeing someone's perfect body and all that stuff, and you tend to get triggered by those things. So as a psychologist, and perhaps you are also a young psychologist, so what do you feel about this overall scenario of social media and mental health? So I would say now they've become very closely linked, क्योंकि सोशल मीडिया की ही वजह से बहुत सारा डायलॉग ऑन मेंटल हेल्थ ओपन हो गया. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब अवेलेबल हो गई. थेरेपिस्ट गॉट अ प्लेटफॉर्म to put their work out there, to educate people, because we are also creating all kinds of helpful content. So while it has its pluses because it's educating people a lot, it's telling them that there are so many options available, the downside is that ज़्यादा भी है. एक तो टू मच है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है. दूसरा लाइक पिकिंग अप फ्रॉम व्हाट यू सेड, देयर इज ऑल्सो अ प्रेशर नाउ टू वन टू क्रिएट कंटेंट. Secondly, there's pressure to consume content. So when you keep scrolling, it's like your mind is not able to rest. तो आप कुछ ना कुछ आपको चाहिए, अपने आप को माइंड को फीड करने के लिए चाहिए. एंड उसमें आप अच्छी चीज़ें भी पिकअप कर रहे हो, फिर आप थोड़ी सी नॉट सो अच्छी चीज़ें भी पिकअप कर रहे हो, वेयर यू थिंक दैट वट एवर यू आर सीइंग ऑन सोशल मीडिया दैट इज़ रियलिटी. whatever it's like whatever glitters is gold, and not realizing that just because कोई चीज़ shine कर रही है वो gold नहीं है. that can be something else also. So when you're seeing somebody's vacation pictures, when you're seeing like the perfect body, people are not telling you कि background में उनको क्या struggle हो रही है. वो उस 30 सेकेंड की क्लिप में, उस एक पोस्ट में आपको इस इंसान की लाइफ के बारे में क्या पता चल रहा है. वही जो वो दिखाना चाह रहे हैं. अच्छा दिखा रहे हैं तो आप वो देख रहे हो, नहीं दिखा रहे तो आप वो देख रहे हो, राइट. बट मोस्टली वी आर लुकिंग फॉर फील गुड कंटेंट एज वेल. तो वही हम देख रहे हैं. एंड फिर लाइक द वर्ड यू यूज्ड, इट ट्रिगर्स आवर ओन इन्फीरियोरिटीज़, इट ट्रिगर्स आवर ओन इनसिक्योरिटीज़. तो ये चीज़ हो रही है. इसीलिए एक माइंडफुल कंजम्पशन होना उसका बहुत ज़रूरी है. एंड एट द सेम टाइम वर्किंग ऑन योर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट. Because it is not necessary that you will get triggered by everything that you see on social media. At the end of the day, अगर आपको कहीं पे insecurity feel हो रही है social media से, point is you are already insecure. Right? So and everybody is insecure about something or the other. So you just have to come across that kind of content that is going to spark that. अच्छा, लोग इसमें क्या करते हैं ना, व्हेन एवर दे गेट ट्रिगर्ड या फिर समथिंग बैड इज़ हैपनिंग, दे डिलीट इंस्टाग्राम, दे डिलीट एवरी अदर सोशल मीडिया ऐप, और उसके बाद एक हफ्ते बाद वापस इंस्टॉल कर देते हैं. एज अ लाइक साइकोलॉजिस्ट एंड बोथ एज एन ऑब्जर्वर, डू यू फील दिस इज मतलब जस्टिफाइड, ये कुछ कर सकता है, या दिस इज जस्ट अ टेम्पररी मतलब एग्जिट? Like as you said, it's a temporary exit.
बिकॉज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. तो अगर मुझे कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आ रही है, अगर मुझे ट्रिगर हो रही है, पॉसिबली मेरे किसी भी लाइफ एरिया को लेकर कुछ मैंने अगर आई एम लाइकली टू कम अप विद सम कंटेंट, कम अक्रॉस सम कंटेंट, या मेरे एक्स है उस पर, या उस तरीके की कोई भी अगर चीज़ें हैं, तो अगर मैंने वो पूरा सोशल मीडिया ही अपना डिलीट कर दिया तो मुझे दिखेगा नहीं कुछ. इट्स नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, राइट. इफ आई एम नॉट सीइंग इट तो फिर मुझे उससे रिलेटेड थॉट्स वगैरह नहीं आएंगे. बट द पॉइंट इज द मिनट यू कम बैक आफ्टर 1 week एंड इफ यू फाइंड योर सेल्फ इन द सेम लूप, इट सिंपली मीन्स दैट आपने रिजॉल्व नहीं किया कुछ, आपने उस मोमेंट पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, थोड़ा सा मेंटल पीस लेने के लिए आपने ये चीज़ करी, मिल तो गया बट इशू तो अभी भी वहीं का वहीं है. So it serves as a temporary distraction, it serves as a short-term relief measure, but until unless it's done with like some kind of a solid intent, you will keep finding yourself in this loop. And लोग करते हैं ऐसा बहुत कि अभी मेरी लड़ाई हो गई, अभी मेरा ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, मुझे मेरा मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो अभी मैं सोशल मीडिया से ऑफ, डीपी रिमूव कर दी, सब कुछ कर दिया, एंड देन आफ्टर सम टाइम हैज पास्ड देन I'll come back to it. But if you've not resolved it in your mind, you'll keep doing the same thing over and over again. True. And are there any particular psychological or medical terms to a certain amount of social media addiction, or maybe a certain amount of time if you are spending too much on social media, or you are putting out yourself too much on social media? Is there any particular psychological or medical term for that? See, we are talking about social media addiction, and ऐसे तो terms पे, see, I don't believe getting too much into terms and jargons simply because people pick up on that. And then अच्छा ये ऐसे बोला था तो ये मुझे भी हो सकता है. So इसीलिए I personally refrain from all of that. But the point is, since we're talking about social media addiction and you've already mentioned too much. So when you know that you are spending too much of your time and energy and it's taking you away from other areas of your life, and it's causing you distress also, एक time के बाद anything that you are basically dependent on, or if it's or if you're really addicted to, you cannot imagine your life without this particular thing, थोड़े time के बाद में वो बहुत uncomfortable होने लगती है. प्लेजर तो मिल रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद में योर माइंड इज़ ऑल्सो एबल टू सी दैट इट्स नॉट गिविंग मी द डिज़ायर्ड किक, द डिज़ायर्ड हाई, एंड इफ दैट डिस्कम्फर्ट स्टार्ट्स टू सीप इन, then that's when the person needs to change something. So this is the only thing that I would like to kind of bring out, कि terms और उसमें ना जाके ये देखो कि जो भी आप चीज़ कर रहे हो, वेदर वो आपकी लाइफ में कुछ ऐड कर रहा है या आपकी लाइफ को माइनस में लेके जा रहा है. लिटिल बिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा में दिक्कत है. घंटों घंटों स्पेंड कर देना, दिनों दिनों, और फिर सोशल मीडिया के अलावा कुछ और सोचना ही नहीं, बीइंग वेरी प्री ऑक्यूपाइड विद कि लोग क्या बोलेंगे, क्या क्या मेरे को ओपिनियन देंगे, मुझे कैसा दिखना चाहिए, और अब बाकी चीज़ें आपकी छूटती जा रही हैं. Then it's time to consider something, because social media is one part of your life, it's not your life. I was asking about the young people, especially the young crowd ना, जैसे I guess आपके पास कॉलेज के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी आते होंगे, particularly relationship stuff and also that, कि कैसा होता है, and even the most discussed hookup culture and all that stuff. तो what do you feel about this overall scenario? जैसे तो आजकल तो dating apps आ गए, Bumble, Hinge and all that stuff, even Tinder. तो people's, we can say people's interaction or getting to know each other is just literally based on just swiping left or swiping right. Like human interaction literally ख़त्म हो गया हुआ है, and things are like this are happening. So what do you feel about this overall scenario and the development that is currently happening? See, अभी से हम सोशल मीडिया बोल लें, हम एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट बोल लें, दैट एट द एंड ऑफ द डे you've got, I would say, a wider canvas to play with. आपके पास the way you're reaching out to people and the modes through which you're reaching out to people, so आपके वो सब avenues तो बढ़ गए हैं, but at the same time क्योंकि everything is more digital, like you said, social interaction ख़त्म हो गई है, और सिर्फ आप एक फ़ोटो के बेस पे आप या 4 लाइनें किसी की बायो में लिखी हुई हैं, सो आप उसके बेसिस पे किसी के पर्सनैलिटी और उनकी लाइफ और उन सब चीज़ों के बारे में आप नहीं जान सकते. So again, it's good if you are not looking for something very
heavy, not looking for something very serious. Not to say that social media पे या इस तरीके की apps पे people don't find the love of their lives or people don't get married. Of course वो सारी चीज़ें भी होती हैं, but at the end of the day, in my opinion, these are avenues that are helping you to connect with people. But you do need to step out into the real world and connect with people. Spend time with them, get to know them. तभी आपको समझ में आएगा that what is it that you are looking for really. एंड ये पर्सन जिसके साथ आप हो वो आपकी लाइफ में कहाँ पे फिट हो रहे हैं. जब तक आप एक डिजिटल वर्ल्ड से निकल के रियल वर्ल्ड में नहीं जाओगे और एक सही इंटेंट के साथ किया, मतलब सही इंटेंट इन द सेंस व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर इन योर रिलेशनशिप्स, तब तक यू विल जस्ट बी लॉस्ट. एंड दिस इज व्हाट हैपन्स विद मेजॉरिटी ऑफ पीपल. कि कन्वीनियंट है, easy access है, but at the end of the day then people are also getting into a lot of trouble because कोई ऐप पे दिखता कुछ और है और बायो में तो कुछ लिखा था, but बाद में the person is turning out to be somebody else. और शुरू की 2-3 मीटिंग्स बहुत अच्छी गई, फिर बाद में और चीज़ें पता लगी. So that's you can only look at these things as avenues. बट एट द एंड ऑफ द डे अगर एक रिलेशनशिप में आपको जाना है तो फिर आपको रियल वर्ल्ड में तो जाना ही पड़ेगा, टाइम अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ये क्लैरिटी रखनी पड़ेगी दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू सीकिंग. तभी आप थोड़ा जल्दी इन चीज़ों को कैच कर पाओगे जो हम सो कॉल्ड बात करते हैं कि रेड फ्लैग्स इन अ पर्सन, रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप, वेदर दिस पर्सन इज़ गुड फॉर यू और नॉट. वो सब चीज़ें तो आपको तभी समझ में आएंगी जब आपके खुद के अंदर क्लैरिटी हो. इट डजेंट मैटर फिर आप कैसे मिल रहे हो उस इंसान से, क्योंकि ये सब चीज़ें मिलोगे तो किसी तरीके से तो ना, या तो फ्रेंड्स मिलाएंगे, फैमिली मेम्बर्स मिलाएंगे, यू विल जस्ट बम्प इनटू समबडी इन अ कॉफी शॉप, यू डोंट नो. So it's just an avenue, but that's all that it is, and that is how we need to consider these. हम जब dependent हो जाते हैं, जो again एक जो इस जनरेशन के साथ भी एंड पहले भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स इसीलिए आती है बिकॉज वी आर टू डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स. हम आगे की चीज़ों को और फैक्टर्स को नहीं कंसिडर करते हैं. अच्छा, एक मैं ना लाइन बोलूँगा यहाँ पे, एंड यू जस्ट टेल मी द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दिस. नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड. It's good for you if you want that. But is it really good? Like genuinely, मतलब is it something that people should follow? और just कि एक बार कर लिया मज़े के लिए, ट्राई करने के लिए? किसकी बात कर रहे हैं हम? रिलेशनशिप्स की या बेसिकली what I meant was कि हम किसकी बात कर रहे हैं. हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की तो बात कर नहीं रहे. रिलेशनशिप्स का कोई प्रोटोकॉल नहीं है. हाउ अ पर्सन वांट्स टू लीड देयर लाइफ, उसका कुछ एक सेट फॉर्मूला नहीं है. सो टू ईच देयर ओन. हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते बिकॉज कौन अपनी लाइफ में क्या ढूंढ रहा है, वो किस स्टेज पे है. इट्स ओके इफ़ यू डोंट वांट अ सीरियस रिलेशनशिप राइट नाउ. इट्स ओके इफ़ यू जस्ट वांट टू हुक अप विद समवन, इफ़ यू वांट टू बी विद समबडी बट यू डोंट वांट द इमोशनल बैगेज. You want to fulfill your needs. All of that is okay as long as you are okay. The person who's engaging in these things, as long as they are okay with it. If that's what they are seeking from their life, then it's completely fine. So इसमें कोई should वाली बात ही नहीं है. पर्सनल चॉइस है ये सारी. एक इनका ना एक मिडिल ग्राउंड आ गया है हुकअप्स एंड सीरियस रिलेशनशिप का बीच में सिचुएशनशिप. लाइक दिस इज द मिडिल ग्राउंड दैट नाउ द जेन ज़ी इज क्रिएटिंग की neither giving a commitment, neither saying that I have feelings for you. It is just the middle ground. So do you think this is mentally healthy to juggle between these two? Absolutely not. Absolutely not. Simply because as you said, आप बीच में फंसे हुए हो. तो आपको ये नहीं पता कि आप किस तरफ हो, मतलब आपको कमिटमेंट देना है नहीं देना है, आपके खुद के अंदर क्लैरिटी नहीं है. एंड सिचुएशनशिप मीन्स दैट थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग. यू आर नॉट रियली इन चार्ज ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग. कहीं ना कहीं आप दूसरे इंसान पर भी डिपेंडेंट हो, उनके फीडबैक पे, उनके ओपिनियंस, उनके एक्शंस. सो इन अ वे तो आप फंसे ही हुए हो, कुछ तो कर नहीं रहे हो क्योंकि किसी रीज़न से कर नहीं पा रहे हो. राइट. सो कब तक चलेगा ये? And that is why it's not mentally healthy, because it does start taking a toll on the people who are involved in the situationship. दोनों को नहीं तो किसी एक को तो तकलीफ होगी ही. क्योंकि कब तक आप ये चीज़ें करोगे ना. बट रिलेशनशिप में भी किसी एक को तकलीफ होती है यूजुअली. लाइक दिस इज़ द केस. मतलब ऐसा बहुत कम मतलब देखा जाता है कि इफ समवन इज़ इन अ रिलेशनशिप एंड दे सीम हैप्पी बट एक्चुअली डीप डाउन देयर इज़ दिस वन पर्सन हु इज़ सफरिंग.
Well, you can't generalize. You can't say कि हर relationship में ऐसा होता है. There are people who are happy also. हमें वो थोड़े कम दिखते हैं. वो एक अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि हर ही इंसान अपने रिलेशनशिप्स में अनहैप्पी होगा. परसेंटेज ज़रूर कम होगी. एंड सेकेंडली, एज आई सेड दैट, सेकेंडली रिलेशनशिप्स आर वेरी डायनामिक. यू नो, सो जनरलाइज नहीं कर सकते. ऐसे तो फिर कोई कभी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहेगा अगर ये सोच के कि भाई किसी ना किसी को तो अनहैप्पी होना ही है. पॉइंट इज, इफ़ यू आर दैट अनहैप्पी देन यू नीड टू कंसिडर व्हाई आर यू इन द रिलेशनशिप. दैट्स वन. सेकेंड, फेजेस तो हर रिलेशनशिप में आते हैं. ये थोड़ा अप एंड डाउन तो चलता है. देयर वुड बी टाइम्स व्हेन यू विल नॉट बी हैप्पी इन द रिलेशनशिप, एंड एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू वर्क थिंग्स आउट, वो फेज भी चला जाता है. बट इफ समबडी फील्स कि यू नो बहुत टाइम हो गया, वो फेज जा ही नहीं रहा है, हमें खुशी मिल ही नहीं रही है, तो फिर आप सोचो कि आप उसमें क्या कर रहे हो, क्योंकि कोई कंपल्शन एज सच नहीं है. And like, this is a very vague question, honestly. Even I would ask this question rather to a philosopher, but as a psychiatrist also, and observing so many people, what do you feel is actual essence of love? Essence of love? Yeah. In just one word, it's all about giving. All about giving. That's all. Not that love expecting is. anything. See, love as a term, as an emotion and as an action, it's all about giving. क्योंकि अगर आप किसी इंसान से किसी चीज़ से प्यार करते हो, तो आप उसको वो सब चीज़ें देना चाहोगे जिससे कि उसकी ग्रोथ हो, जिससे कि उसे खुशी मिले. You know, like for example, let's say I have a pet. You know, I have a dog and I say I love that dog. So मैं वो सब चीज़ें करूँगी ना, अपना प्यार दूंगी उस डॉग को ताकि उसकी लाइफ बेहतर हो सके, एंड ही फील्स दैट ही इज़ लव्ड. Right? So giving is for me, the word giving is something that captures the essence of love. अब जब हम एक रिलेशनशिप की बात करते हैं, expectations relationships में आती हैं. When you love somebody and if you're not in a relationship with them, it's not necessary that you will have expectations. Expectations सिर्फ और सिर्फ relationships का component है. So जब आपको sense हो जाए कि maybe the other person, you know, you've told them that for example you love them, right? तब यहाँ पे जब कम्युनिकेशन शुरू होगी, तब शायद एक्सपेक्टेशंस आनी शुरू हो जाए. बट जब तक किसी को पता नहीं है, आप अपने ही दिमाग में कोई चीज़ सोच के बैठे हो या आप कुछ खुद फील कर रहे हो, तब तक कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है इन योर ओन जोन. वो हमेशा एक रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं. और रिलेशनशिप्स बिना एक्सपेक्टेशंस के तो चल ही नहीं सकते. तो जब ये लोग बोलते हैं कि आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत हद तक पॉसिबल है नहीं. क्योंकि एक रिलेशनशिप में अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, यानी इफ़ आई डोंट नो दैट, और इफ़ आई डोंट फील दैट यू नो आई एम कमिंग विद सर्टन नीड्स, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए तभी मैं आपके साथ एक रिलेशनशिप में हूँ, और आप मेरी नीड्स अगर फुलफ़िल नहीं कर सकते हो, तो फिर वो रिलेशनशिप चलेगा कैसे? Right? And it's the same for the person on the other side, whether you're talking about friends, family members, partners. Expectations are a part of the relationship. अब वो कितनी reasonable हैं, कितनी unreasonable हैं, कितनी fulfill हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, वो एक सोचने समझने की बात है within the context of the relationship. And why do you think the spark dies in relationships after some time? You know, spending a certain amount of time with that person, suddenly that spark dies. अगेन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. सबसे पहला तो बहुत बेस लेवल पे, जब आप इतना लंबा टाइम किसी के साथ स्पेंड कर लेते हो, तो आपको तो उनकी आदत पड़ जाती है, राइट? सो हर चीज़ रूटीन में आ जाती है, तो बोर्डम हो जाता है. तो इसीलिए रिलेशनशिप्स को रिन्यू करने की कोशिश हमेशा ही पार्टनर्स को करते रहनी चाहिए. So the more you keep discovering yourself, the more you keep investing in your relationship, come up with new ways of, you know, connecting with your partner. So ये सब चीज़ें over time फिर इतना बढ़ती नहीं है, थोड़ा बहुत फेज ज़रूर आता जाता रहता है. But boredom and, you know, spark जाना, ये सब तब होता है when people stop investing in the relationship. So eventually फिर वो feeling भी नहीं आ पाती है. We live in an age जहाँ पे to show this emotion we send each other's reels. So what do you think actually couples should do to, you know, reignite that spark?
they can send reels. There is absolutely no problem in sending reels. अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके मैसेज को थोड़ा फन वे में, लाइटर वे में कम्युनिकेट कर दे, तो कोई पोस्ट या रील भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट प्रॉब्लम तब आती है व्हेन कपल्स आर ओनली सेंडिंग रील्स, व्हेन दे आर ओनली सेंडिंग पोस्ट एंड देन दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट मैंने सीक्रेटली एक मैसेज भेज दिया है या मैंने उस तरीके से कवर करके अपना मैसेज दे दिया है, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए. That really doesn't happen. It's okay, you're doing it once in a while and it's giving you some element of fun and all that, but couples need to talk. Couples need to resolve their issues. They need to invest time and energy with each other in the relationship for it to work. जो खाली सोशल मीडिया नहीं चलाएगा किसी का रिलेशनशिप. फॉर दैट मैटर जैसे फ्रेंड्स को भी लोग बोलते थे यार तुम्हारे लिए बात कर दे, यार तू जाके इसको समझा दे, या फैमिली मेम्बर्स घुस जाते हैं कपल इश्यूज में कि हम बात करते हैं. अब कुछ टाइम के लिए ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे टू अडल्ट्स इन अ रिलेशनशिप, राइट? दे नीड टू बी एबल टू नेविगेट दैट. तो वही आपस में बात नहीं करेंगे तो कोई थर्ड पार्टी या सोशल मीडिया क्या करेगा? इस पे लवी डवी रोमांस तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, बट लेट्स मूव टुवर्ड्स द हार्श पार्ट, दैट इज़ ब्रेकअप. पोस्ट ब्रेकअप ना बहुत सारी पर्सनालिटीज़ निकल के आती है, मेजरली कबीर सिंह. एंड सेकेंडली तो इट डिपेंड्स, सम गो टुवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग कि आई एम गोना चेंज माई सेल्फ बिकॉज आई वांट, समटाइम्स पीपल जस्ट वांट टू प्रूव दैट दिस इज़ द वे आई एम नाउ, दिस इज़ व्हाट आई हैव चेंज्ड अबाउट माई सेल्फ. दो काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स है, मेजरली ये दो पर्सपेक्टिव्स है, एक कबीर सिंह और एक इम्प्रूवमेंट. So what do you feel is actually the right way to get over a person and to handle breakup? So two questions. The right way to get over a person and how to handle a breakup. So right way to get over a person, there is no right way. Everybody is going to deal with this phase of their life or this event that has taken place in their own way. क्योंकि उनके इंटरनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो सिर्फ वो जानते, कई बार वो खुद भी नहीं जानते, हमें खुद भी नहीं पता लगता कि हम क्या सोच रहे हैं या किसी चीज़ का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है. सो देयर इज़ नो राइट वे. एंड सेकेंड, हाउ टू डील विद ब्रेकअप्स, यू नीड टू टेक टाइम. वन थिंग दैट यू शुड नॉट डू इज़ जम्प फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर. कि अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है एंड मेरे को बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है, मुझे लोनली फील हो रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी द केस, क्योंकि आपकी लाइफ से एक लॉस, you've experienced a loss. एक आपकी लाइफ का चैप्टर ख़त्म हुआ है, एक वैक्यूम रह गया है. तो उसको फिल करने के चक्कर में जब लोग एक के बाद एक रिलेशनशिप में जाना शुरू कर देते हैं, वो प्रॉब्लम है. क्योंकि आप अपना एक अनहील्ड पार्ट लेके, आप एक अनहील्ड वर्जन हो जो एक रिलेशनशिप में जा रहा है. यू हैव नॉट रियली थॉट थ्रू कि आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में क्या हुआ, किसका कितना कंट्रीब्यूशन था, या क्या कितना भी नहीं बट क्या कंट्रीब्यूशन था. व्हाट इज़ इट दैट आई नीड टू लर्न फ्रॉम द रिलेशनशिप सो दैट मेरा नेक्स्ट वाला अच्छा हो या बेटर हो. इस तरीके से कोई सोचता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स होती हैं. सेकेंडली, व्हेन एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस, स्पेशली जब एक रिलेशनशिप जाता है आपकी लाइफ से, आपको बहुत तकलीफ होगी. दैट इज़ अ गिवन. And people don't want to experience that pain, and of course even that is normal and psychological only, because why would anybody want to experience pain? You don't want to feel uncomfortable, I don't want to feel uncomfortable, right? We want to stay as comfortable as possible. और जब इस तरीके का कोई इवेंट होता है तो ऑब्वियसली फिर हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ प्रोटेक्टिव मोड में चले जाते हैं कि हम किस तरीके से अपने पेन को दूर कर सकें, जहाँ पे फिर ये रीबाउंड रिलेशनशिप्स आ जाते हैं. कि एक जना चला गया, अब मुझे लोनली फील हो रहा है, तो मैं उसका पेन किसी दूसरे के साथ में शेयर कर लूँ तो शायद मुझे कम फील हो. तो वो कम तो फील होगा बट जाएगा तो नहीं ना. एंड एवरी रिलेशनशिप इज़ कमिंग विद इट्स ओन डिमांड्स. तो आप फ्रैंकली किसी रिलेशनशिप को फिर जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपना पुराना बैगेज लेके चलते जा रहे हो. कई बार वी गेट इन टू कंपेरिजन्स, करंट पार्टनर को प्रीवियस पार्टनर से कंपेयर कर देना, ये रिलेशनशिप तो उसके जैसा नहीं है. आप हो किसी के साथ, आपको मेमोरीज दूसरे रिलेशनशिप की आ रही हैं, सो इमोशनली यू आर नॉट प्रेजेंट. So which is why if something like that has happened, it's important for people to take some time. It's important to some time, क्या जितना टाइम किसी को चाहिए, अब वो 6 महीने हो, वो चाहे 1 साल हो, that depends. But people should take time. They should allow themselves to grieve the loss of a relationship, क्योंकि आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी, वो जायज़ है. उससे भागने की बजाय you need to embrace it, accept it कि अभी कुछ समय तो तकलीफ होगी.
एंड देन येस वर्क ऑन योर सेल्फ. मैं अब इससे बेस्ट वे में किस तरीके से अपने आप को उभार सकती हूँ. बाहर लाना भी, आई वुडंट वांट टू यूज द टर्म बाहर लेके आना, बट हाउ कैन आई राइज अबव दिस इन द बेस्ट वे पॉसिबल. व्हाट डू आई लर्न फ्रॉम इट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई नेक्स्ट रिलेशनशिप. That's the, in a way, I would say the best way to cope with the loss of a relationship. And timeline सबकी vary करती है. And meanwhile, when you feel lonely, when you have this trigger points की एक बार बात कर लेते हैं, एक बार कॉल कर लेते हैं, and then eventually it will be sorted. So what should be the a sound decision in this particular circumstance की whether you should call that person or you should remain a distance. Also a very controversial sort of thing, should you remain friends with your ex? Oh well, as you said, controversial, and again, see, you have to look at these things in the context in which they are occurring. कहने का मतलब है कि अगर आपकी इच्छा हो रही है कि बार बार आप अपने एक्स को कॉल करो, अभी ब्रेकअप हो गया है, नॉर्मल है, because if you've been the one who did not want to break up, who did not want the relationship to end, या कभी म्यूचुअल भी अगर होता है तो देखो, कोई इंसान अगर आपकी लाइफ का इतना बड़ा एक पार्ट रहा है, एकदम से कैसे आप उसको कट ऑफ कर दोगे. कई बार कभी कुछ लोग कर भी पाते हैं, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है. सो उसमें वो थोड़ा सा एक अर्ज रहना कि मैं कॉल कर लूँ, एक बार मेरी बात हो जाए, नॉर्मल है. टू से कि करना चाहिए या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन कि किस नोट पे रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, वेदर यू फील यू हैव ऑल द आंसर्स और नॉट, बिकॉज समटाइम्स इट डज बिकम इम्पॉर्टेंट टू टॉक एक्चुअली. इफ़ योर पार्टनर जस्ट रैंडमली स्प्रंग अप द ब्रेकअप ऑन यू, कि कल शादी होने वाली थी और आज मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, वट एवर द केस में बी, यू वुड वॉन्ट टू टॉक, यू वुड वॉन्ट टू नो कि ऐसा क्या हो गया. देर आर सम आंसर्स दैट यू वुड वॉन्ट, राइट. वहीं पे अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, सो देन यू नीड टू थिंक कि कॉल करने से कुछ मिलेगा अभी या नहीं. जब पता ही है, डिसाइड ही कर लिया है, फ्यूचर दिख ही रहा है, नहीं है कोई, तो कॉल करके भी क्या हो जाएगा. आई हैव ऑल द आंसर्स. सो अगेन इट डिपेंड्स कि किस कॉन्टेक्स्ट में ब्रेकअप हुआ. एंड कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्स के साथ फ्रेंड्स होना चाहिए या नहीं, देर आर पीपल हु आर एबल टू बी फ्रेंड्स विद देयर एक्सेस. ठीक है, परसेंटेज शायद बहुत ज़्यादा ना हो, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवीज़ में होता है, रियल लाइफ में भी पीपल आर एबल टू, इफ़ दे हैव बीन एबल टू वर्क ऑन देयर इमोशनल बैगेज. व्हेन यू लुक एट द पर्सन जिसके साथ आपकी एक हिस्ट्री रही है, and if you feel at peace, if you feel that you are ready to have a new relationship with them, which is not in the capacity of like a romantic relationship, and if both of you can handle it, fine. If you cannot, if you don't want to, then you should not. Is that ever happened with you when you were observing a certain case, and things like this happened, there is this breakup but still the guy or the girl wants to get back together or something like that? It's very common actually. और ये स्पेशली तब होता है जब ब्रेकअप किसी एक इंसान के टर्म्स पे हुआ हो. अच्छा, इसमें डू यू फील ब्रेकअप इज म्यूचुअल? बिकॉज मोस्ट of in my observation I feel whenever someone says it's mutual, the cases कि सामने वाले ने किया हुआ है, because again rejection किसी को अच्छा नहीं लगता, so they just want to say it was mutual. Well, a lot of times people say this just for the sake of it, क्योंकि like you said वो दिखाना नहीं चाहते कि सामने क्या है, but there are times when it is actually mutual, when two people have thought through things and they have come to the conclusion that we can't see a future with each other, so drag करने का कोई point नहीं है. That does not mean that it's not going to be painful for them. वो तकलीफ दोनों को ही हो रही है, ठीक है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, मतलब वो सब चीज़ें वेरी कर सकती हैं, बट म्यूचुअल ब्रेकअप्स होते हैं. That ऐसा नहीं है that everybody will be just saying it for the sake of it. हाँ, एंड यहाँ से एक वो चीज़ निकल के आती है, जैसे दिस इज़ तो लाइक वेरी वेरी मतलब टिपिकल कि आफ्टर ब्रेकअप यू एंड अप बीइंग टुवर्ड्स फ्रेंड्स, रैंटिंग अबाउट दैट पर्सन, and maybe drinking, smoking and all that stuff, and maybe in a very huge quantity. So एक ना सडन, ये एक कह सकते हैं एक ना सडन आपका एक्शन है जस्ट आफ्टर दिस, कि एक आपको स्टिमुलाई मिला है कि हाँ ब्रेकअप हो गया, अब चलो एस्केपिज्म की तरफ भागते हैं. सो एज अ साइकोलॉजिस्ट डू यू फील कि दिस इज समथिंग पीपल शुड डू और दे शुड डिजिस्ट फ्रॉम दिस? Well, they should not do it, but the point also is that
ये भी नॉर्मल है. It's a very normal human response to move towards any kind of substance, food, rant to with your friends or in front of them and continue that for a very long time, because it simply means that you're not able to cope and you need something to get you by. So कुछ तो इंसान करेगा अपने डिस्ट्रेस को अलिविएट करने के लिए, उसे कम करने के लिए. एंड द फैक्ट इज दैट साइकोलॉजिकली वी ओनली अंडरस्टैंड 2 states, प्लेजर एंड पेन. सो कोई भी चीज़ जो हमें प्लेजर देगी, चाहे वो मोमेंट्री ही क्यों ना हो, लॉन्ग रन में कर ले जो नुकसान करना है, बट एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन इट्स गिविंग अस प्लेजर, वी विल ग्रेविटेट टूवर्ड्स दैट. वट एवर हेल्प्स अस टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ पेन, वी विल मूव टूवर्ड्स दैट. सो जब इस तरीके का कोई मिसहैप हो जाता है, आपका डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा है दैट यू वांट टू रन टुवर्ड्स एनीथिंग दैट विल गिव यू कंफर्ट. सो उस सेंस में देखा जाए, ऑल ऑफ दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल कोपिंग रिस्पॉन्स, नॉट हेल्दी बट normal, and it has long-term consequences. Sometimes it has even short-term consequences. So इसीलिए it's important for people to be very mindful of how they are coping, because आपको थोड़ा बहुत pleasure मिल जाएगा, थोड़ा बहुत relief मिल जाएगा, but किस नुकसान के बेसिस पे, वो सोचने वाली बात होती है. तो जब हम इस चीज़ से कट ऑफ हो जाते हैं, तब हमें तकलीफ आती है. हम ना, जैसे पहले आप मूवीज़ का भी कुछ टाइम पहले रेफरेंस दे रहे थे कि वी सॉर्ट ऑफ कंपेयर इट इन दैट वे. एक सॉर्ट ऑफ मेरा भी एक ऑब्जर्वेशन था इस पे कि आई फील स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सिटकॉम्स, जैसे बहुत पॉपुलर सिटकॉम्स है, फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर एंड द ऑफिस वगैरह, काफ़ी कुछ है. सो वी एज इंडिविजुअल्स सॉर्ट ऑफ delve into these observations कि there is this group of 5 people or 6 people, they are chilling around doing everything, बहुत सारी चीज़ें discover करें and all that stuff. So that sort of is really nice to watch, entertainment हो रहा है, but eventually deep down ना हम खुद को एक उस स्टेज में ले जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, हमारी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है. एक ना सिटकॉम्स और ये जितनी भी वेब सीरीज है, इनके साथ हमारे कंपैरिजन हो जाता है. So what do you feel about this? See, again, at the end of the day, if you are not happy, you will look for an escape. फिर चाहे वो सिटकॉम हो, चाहे कुछ भी हो, that's one. Second, even if you are happy, you still want some more fun elements or some lighter elements in your life. So आप इन सब चीज़ों से आप expose तो हो गई. But at the end of the day, what you pick up from that depends on what stage of life you are in, what are these things triggering in you. So if somebody is looking at watching a sitcom and being like, मेरी life ऐसी क्यों नहीं है, I would really want to ask them that what do you actually feel about your life then? Because when I am watching a sitcom, I am not thinking कि मेरी life ऐसी क्यों नहीं है. Right? If somebody is thinking, then obviously उनको उस particular scene में, series में, कुछ में भी जो भी वो देख रहे हैं, कुछ एक gap है that they are able to that they can see कि उस sitcom से fulfill हो रहा है, उस particular scene में उन्हें कुछ identify हुआ अपनी life से. But obviously हम रोज़मर्रा में इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, हमें कहाँ realize होता है कि किस चीज़ का क्या मतलब है. बट इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं तो किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं तो गैप है, हर कोई नहीं सोचेगा ऐसे. Now we are moving towards the sort of end of this conversation. So eventually in the end I would just like to ask you this one thing. This is a very broad question honestly, मतलब आप चाहो तो layers में इसको आंसर कर सकते हैं, but the thing is कि this is this one thing, this question is very small but इसका impact काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है. That is like when it comes to the youth ना, they are already in that zone अभी इस time में. मैं सिर्फ कॉलेज क्राउड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ. दे आर लिटरली राइट नाउ इन दैट जोन की लिटरली एवरीवन इज़ इन दैट इन्फ्लुएंसर मेंटालिटी. आप रील्स पे नाच रहे हो, आपको व्यूज़ आ रहे हैं एंड लोग उसको चेरिश कर रहे हैं, लोग उसको इन्जॉय कर रहे हैं विदाउट सीइंग द अदर डार्क साइड दैट मे बी लाइंग बिहाइंड दैट एंड ऑल दैट स्टफ. रिकग्निशन है, सही है, बट इवेंचुअली बहुत सारी और भी चीज़ें हैं. एंड वही ये सब everything is happening so fast. Internet is accessible to children ki they know things better than us sometimes. So overall, as there would be consequences to this in future, what do you feel is the ultimate mental health solution to this overall issue? Ideal scenario mein everybody needs to consume
and use social media wisely and mindfully. आप करो, आपको रील्स बनानी है आप बिल्कुल बनाओ, आपको उसमें से इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी है, मतलब एवरीथिंग इज़ ओके एज लॉन्ग एज इट्स एडिंग वैल्यू. दैट्स समथिंग दैट आई फर्मली बिलीव इन कि अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है आप करो, लेकिन कुछ भी जो कर रहे हो उसे माइंडफुली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो अभी क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज़ टू मच. लाइक इवन पेरेंट्स आर यूजिंग सोशल मीडिया एज अ टूल टू रेगुलेट देयर किड्स. कि बच्चे को आपने फ़ोन पकड़ा दिया, अब वो 2 घंटे तक फ़ोन में लगा हुआ है. पेरेंट्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं है. बट what is the child picking up from there? What kind of a behavior pattern then are you teaching your child? Right? So इसीलिए whether it's kids, whether it's we as adults, we all need to use social media mindfully. देखो at the end of the day it's just another avenue, it's just one of the things that we use. तो हम इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, पर हर चीज़ को हम राशन करके चलते हैं. आप गाड़ी चलाओगे, ऐसा तो नहीं क्या पूरा दिन पूरा हफ्ते ही चलाते ही चले जाओगे, बॉडी कभी ना कभी तो थकेगी, व्हीकल थकेगा. सो आप इसलिए चीज़ों को मेजर करके चलते हो. सोशल मीडिया इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट, एंड ऑल ऑफ अस नीड टू बी माइंडफुल इन टुडेज डे एंड एज, क्योंकि सोशल मीडिया कहीं जाने वाला नहीं है. टेक्नोलॉजी कहीं जाने वाली नहीं है, बल्कि और बढ़ेगी ही. तो इसीलिए ये हमारे ऊपर है कि हम उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, रादर देन कि हम उसमें घुसते ही चले जाएं. अब वो एवरीबडी नीड्स टू बी इंटेंशनल विद देयर ओन सेल्व्स, क्योंकि कंज्यूम कम करना चाहिए, माइंडफुली करना चाहिए, तो सबको पता है. आप क्यों नहीं कर रहे हो वो आपके अपने इंडिविजुअल रीजंस हैं जो आपको सोचने की ज़रूरत है. एंड एवरीबडी नीड्स टू एंगेज इन दैट थिंकिंग फॉर देयर ओन सेल्व्स. एंड ऐसा नहीं है पीपल आर नॉट एबल टू डू दैट, पीपल आर एबल टू. थोड़ा स्ट्रगल होती है शुरू में, बट वंस यू अंडरस्टैंड एंड यू आर एबल टू सेट अ न्यू हैबिट, रेगुलेट हो भी जाता है. So in the long run, regulation needs to be the key. It's not about going off it completely, but it's about using it in moderation and regulating your use. That's what everybody needs to come to. And similarly, like when it comes to therapy and all that serious stuff, who should ideally, again वो first के साथ collide कर रहा है जो मैंने आपको starting में पूछा था, but eventually who should really में go for therapy? मतलब is it लाइक समथिंग, मतलब आपको एक तो आपको वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो, विटनेस कर रहे हो कि आपको इतना सब कुछ हो रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, बट इवेंचुअली हु शुड एक्चुअली में गो फॉर थेरेपी एंड सीरियस दी सॉर्ट ऑफ डायमेंशंस टुवर्ड्स साइकोलॉजी, टेकिंग पिल्स एंड ऑल दैट स्टफ? See, it's not about taking pills and all that. You should not do that until unless you have been diagnosed by a medical professional. But other than that, anybody can go for therapy if they feel the need. See, I can tell you that you need therapy, आप जाओ. But how do I know कि आपकी need है या नहीं? Number one, even if I think आपको कुछ struggle हो रही है, question is आपको feel हो रही है कि नहीं? Right? So आप तभी जाओगे जब आपको कोई तकलीफ है, and when you are willing to work on it. So anybody can go for it if they feel they feel the need for it, and if they are willing to resolve certain issues in their life. And at last, मतलब the people who feel कि therapy is a joke and they still feel कि mental health is something which is just taken lightly, or it's something that should be like forgotten. मतलब कुछ करो, कहीं जाओ, जिम करो, बाकी सब चीज़ें करो and just forget about it. What do you wanna say to those people? That therapy is not a joke. If it was really a joke, then I don't think professionals like us would have existed and would have lasted for that long, number one. Number two, there are people who've gone to therapy and they have benefited a lot. So वो population फिर नहीं exist करती ना. See, हर तरीके के लोग exist कर रहे हैं, तो every coin has two sides. So हम ये side देख रहे हैं कि भाई it's a joke and हमारे लिए work नहीं करा या जो भी चीज़ें हैं, but उसका twin side भी exist करता है. That it has helped people. क्यों फिर इतनी सारी किताबें, क्यों इतनी सारी थ्योरीज, क्यों लोग पढ़ रहे हैं? मतलब एग्जिस्ट कर रही है तो किसी रीज़न से कर रही है ना. सो ये सब अब वही है कि इंसान जो देखना चाहेगा वो वही देखेगा, जो बिलीव करना चाहेगा वो वही बिलीव करेगा. एंड आई डोंट से दैट जस्ट बिकॉज आई एम अ थेरेपिस्ट. I say that because I've been a client myself. I've been in therapy. Now I've been working as a therapist for a long time. I've got clients on the other side who have benefited tremendously. So I've seen all three sides. And just like me, there would be plenty of other people. So it works. It exists for a reason. And again, there is no stage
फॉर इट. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी तकलीफ हो रही है, इट्स कम्प्लीटली ओके टू टेक दैट हेल्प, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ. इनफैक्ट योर माइंड इज़ वॉट इज़ रनिंग योर एंटायर बॉडी. हम जितना मर्जी सोच लें, बट दैट इज़ नॉट द केस. एंड जिम जाना, दोस्तों से बात कर लेना, दीज आर कोपिंग मैकेनिज्म्स. आप बिल्कुल करो, कौन रोक रहा है आपको? आपकी हेल्प हो रही है, इससे आपको अच्छा फील होता है, आपको कभी एक क्लैरिटी इन पर्सपेक्टिव मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है. बट ये सब करने के बाद भी अगर चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही हैं, देन देयर इज़ समथिंग मोर. And it is worth exploring that, because it's only going to make you a better person. It's only going to improve your quality of life if you're willing to look at it like that. That's all. I guess that was also all from my side. I hope you enjoyed this conversation. Absolutely. And I had a great time. I hope you did too. Absolutely. Some lovely questions. Thank you so much for being with us. Thank you.